Good morning, everybody. So good morning. sir. Good morning, sir. Ayachi. Good morning, Ayachi. Ayachi, can you hear me? Good morning, sir. Good morning. How are you now? I'm fine, sir. Very good, very good. Okay, so we'll continue where we left off last time. Mr. Gaurav is coming in and people are still trickling in. Good morning, sir. Good morning. Saurav Kumar. Saurav Kumar, can you hear me? Saurav? Yes, sir. Yes, Saurav, how long have you been in this class? सॉरी सर, वो तबीयत मेरा ठीक नहीं था, इसी वजह से नहीं आ रहे थे क्लास। नहीं, वो कितने तब से आए हो ये मैं नहीं जान रहा हूँ, वो नहीं, उसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुमने अपना आईडी और रोल नंबर नहीं लिखा है बाबू। ठीक है, it's just saying Saurav Kumar. Okay, sir. Just wait. Attendance, there will be a problem, right? Okay, sir. And I just request everybody to put the roll number first, and then the ID, and then your name. क्योंकि इससे क्या होगा कि वो सीरियल ऑर्डर में लेता है Zoom, and while taking the attendance, it will be more convenient for us. अगर आप रोल नंबर पहले लिखते हैं, बैच 1, बैच 2 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, B1 and B2. बैच है भी नहीं सर हम लोगों में। हाँ, यहाँ पे लोग B1 और B2 कुछ लोग क्यों लिखे हुए हैं? Pratik, batch 1, and then Muhammad Subhan, batch 1, Komal Kumari, batch 1.
Okay, I'm just quickly scrolling through the pages so that we can come to where we left off last time. So bear with me for a moment. It's taking me longer than I expected. So Pratyay, do you have any idea where we left off last time? Yes, sir. Yes. Answer 33, sir. Get on. So on page 33. number, yes, sir. Page number 73, get on 33 number point, sir. Nice. अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि whether to go on the page or to allow people in. Niharika, Deepa, all these people are still joining in. और मैं एक बार जब पेज शेयर करने लगता हूँ तो फिर मैं लोगों को अलाउ नहीं कर सकता एंट्री. ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन है. मुझे वो पेज लीव करना होगा and then I will be able to allow them in. आठ 24 हो गया सर, इस बार अलाउ कर दीजिए, इसके बाद से छोड़ दीजिए। हाँ तो अलाउ तो कर ही Sorry, रहे sir. हैं, मैं वही इसलिए तो पेज हम अभी नहीं पुल अप कर पा रहे हैं। अभी अमन राज has decided to come in, Saloni has decided to come in, and Amrita Kumar has decided to come in. Amrit Kumar, sorry. सर प्रोसीड कर दो। 10 minutes तो इसी में चले जाते हैं। मैं जब शेयर करने जा रहा था तो मिस्टर उमंग पूरे enthusiasm के साथ he decides to come in. हाँ कौन सा बताया थे? Yes, sir. 33 number, sir. Point, sir. Get on. 33, okay. Get on. Yes. So get on, we sir. always know that, you know, get on with your work, advance, यानी आगे बढ़ो. इसका एक नया इस definition है move on, you know, move on, यानी जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो. हाँ? आगे बढ़ना सर. हाँ, आगे बढ़ो. Move on with your life. Move on with this thing. So that is get on, and then get off भी है. Get off where छोड़ देना। हाँ escape करना है. कोई get off छोड़ देना तो नहीं है, but अगर कोई आपका बहुत फायदा उठा रहा है, वो डिपेंडेंट हो गया है आपके ऊपर. यार असाइनमेंट बनाओ, तुम अपना बनाओगे तो मैं तुम्हारा देख लूंगा, और all the work, you know,
So when you do the complete the notes, let me know. So I will also take it. So that person has become dependent on you. निर्भर हूँ. तो एक ऐसा समय आएगा जब आप बोलोगे उसको कि just get off my back. Get off my back. मतलब मेरा पिंड छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो. Become self-dependent. That is the meaning of get away or get off. Get away or get off दोनों आगे पीछे दोनों लिखे हैं. 34 में get off है and 36 में Sir, get away. दोनों का मीनिंग सर सेम है. Almost. Get away मतलब कहीं से escape करना वो ज्यादा होता है. Get off अगर कोई आप पे निर्भर हो गया है और आप चाहते हैं कि भाई वो आत्मनिर्भर बने तो get off. But get away, the prisoners got away from the jail, or they the under trials, जिनका under trials उनको कहते हैं जिनका मुकदमा चल रहा हो जिनके ऊपर. कोर्ट में. यस. हाँ मुकदमा सर कोर्ट. हाँ कोर्ट में. तो जिन पे मुकदमा चल रहा है उनको अंडर ट्रायल्स कहते हैं. तो अंडर ट्रायल्स got away with a very light punishment. Get away मतलब एक बहुत हल्के से जिससे वो छुटकारा पा ले. बहुत light punishments. That can mean get away or escape. Get through. Get through means to barely pass. किसी एग्जामिनेशन में हाँ जी पास कर गए वही वो 35 से 40 नंबर के बीच में. If someone has topped with flying colors, बहुत अच्छे नंबर से पास किया तो उसको कहते हैं oh he got through with flying colors. So flying colors means has done very well. वो बहुत अच्छा किया. That is the difference, you know. Yes, sir. I get confused. इतने छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं कि मैं कहाँ पे था. मोबाइल में और भी छोटा दिखता है. तो get through, हाँ get through means barely pass. ये याद रखें. To pass in an examination. Get out of. This is rather get out of one's clutches. Clutches मतलब किसी ने पकड़ रखा, आपको जकड़ रखा है. उसने in a way आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या आपने उससे पैसे उधार लिए अब आपको वो छोड़ नहीं रहा है, जाने नहीं दे रहा है. Clutches means something like that. So get out of. उसके clutches या उसके पकड़ से कैसे हम निकले. That is get out of. Get out of one's clutches. Get on with. ये तो same है what we did. Get on and get on with. Not much of a difference. Agree or live sociably with a person. Get along with. इसको इसके लिए भी कहते हैं get on with. Like अगर दो लोगों में बहुत अच्छी बनती है. Two people who get along very well. Yes, sir. So you can say, oh, the two get on or Ramesh gets along with Suresh very well. So they get along very well. यहाँ आपस में उनकी खूब बनती है. ठीक है ना. इसमें एक मुहावरा है which I want to just let you know. Carrots or peas, they get along like carrots and peas. अब ये वर्ड का इसलिए दोनों वेजिटेबल्स का नाम दिया गया है क्योंकि ये दोनों अक्सर कॉम्बिनेशन कुकिंग में यूज किया जाता है. गाजर और मटर. हो सकता है हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं, ठीक है ना, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में तो वो दोनों मतलब जबरदस्त एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. वो अक्सर बोला जाता है ओ दे गेट अलोंग लाइक कैरेट्स एंड पीस. तो खाने में वो कॉम्बिनेशन जो यूज होता है, दैट्स अ idiom kind of. Give away, like if somebody has given away a prize, a chief guest was called in and he gave away the prizes.
गिव अवे एक दूसरे सेंस में भी यूज किया जाता है जब आप बहुत हाउ शुड आई पुट इट, वेरी इजीली आपने हार मान ली और कुछ दे दिया किसी और को बगैर लड़े बगैर संघर्ष के. So he gave away parts of his kingdom without even putting up a fight. Give away मतलब किसी को प्रेजेंट देना या प्राइज देना, उसको भी कहा जाता है. So the next one, 41, is give over. Give over. So charge. यानी usually होता है transfer of charge होता है ये, but maybe in the US context or some other they could use, not in the Queen's English, but give over यानी आपने कोई चीज किसी को दे दिया, आपने हैंड ओवर भी बोल सकते हैं. hand over is a much better word. He handed over his charge. यस, यानी एक आदमी जब छोड़ता है या दूसरे को प्रमोट होता है तो दूसरे व्यक्ति को अपने पूरे ऑफिशियल चार्ज देता है कि हाँ भाई दिस काम समझा देता है कि ये पेंडिंग है, ये हो चुका है, ये करंट फाइल्स हैं, ये, दैट इज हैंडिंग ओवर चार्ज. दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. यस, गिव अप ये सबसे आसान चीज है दुनिया में करने के लिए. नहीं, गिव अप, सरेंडर बोल दो. Yes, sir. छोड़ दो. एग्जाम्स आ रहे हैं, यार आई कांट मैनेज, आई गिव अप. अभी बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 का ये जो चल रहा है डिलेमा, क्या होगा कैसे नहीं होगा, या 10th की तरह उन लोग को भी, इट्स ऑल जो स्टूडेंट्स लोग हैं, you know, because of this pandemic, I'm sure you also are finding it a little difficult. Teaching जो है वो पहले से कहीं ज्यादा difficult हो गया. मैं अपने एग्जाम्पल पे कह सकता हूँ, teaching is not that easy as it was before the classroom session, because your mind it's kind of slows down. Creative ideas don't come your way so frequently. I'm sure it's the same way for students also. Do not be discouraged. Life, the show must go on. So we have to carry on. थोड़ा सा extra अपने आप को pressurize करना पड़ता है, extra efforts खोजता है, लेकिन we have to go on. So give up. Give up means to surrender. कोई भी चीज से हार मानना. Go into. Did you get into the nitty-gritties? Did you go into the problem? ये question हो सकता है. So go into मतलब उसको examine करना, investigate करना, बारीकी से, intricate details. So that is going into a problem or studying any issue. You know, when you study it, you go into the details. 44 is rather easy. Go back upon one's word. ये गेल नहीं, fail to keep it होना चाहिए. This is a printing error, a typo. So when you go upon, यानी आपने किसी को कुछ वादा किया था या कुछ बोला था और बाद में आपको लगा कि यार ये कैसे होगा, तो you go upon your word, meaning आपने जो बोला था उससे मुकर जाना. Very simple. You go back on your words. Go through. Go through मतलब examine the accounts है, ठीक है. Go through the problem, go through the accounts. यानी पूरा उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखना कि correct है कि नहीं. But go through can also mean that किसी चीज को शुरू से लेके अंत तक आप execute किए, किसी plan को या जो directions लेना था आपको. He went through the planning and the execution stage of the project. He went through it. Go through मतलब आपने शुरू से लेके अंत तक किया. Hold on ये हम लोग कहते हैं एक महीने में रुक जाओ. As simple as that. Hold on. You can even say it on a telephonic conversation. Please hold on. I have something important to do.
or you can say hold on, अभी वो जो तुम कर रहे हो उस पे थोड़ा सा रुक जाओ, मैं और चेक करके तुमको बताऊंगा. So this is just wait for a moment, or preserve, अभी थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, hold on. Hold back. Hold back मतलब होता है कि किसी को रोकना आगे बढ़ने से. Not just you, अगर आपको खुद अपने आप को रोकना है तो hold on, लेकिन अगर किसी और को रोकना है कोई काम से या कोई भी चीज से, you ask that person to hold back or restraint. Restraint means to stop a person. किसी काम को रोकने. हो सकता है पहले आपने निर्देश जारी किया हो. First of all, in the beginning, you instructed that person to do such a thing, कोई भी एक्टिविटी करने. But later on, आपने realize किया कि अरे इसमें एक complication. So you can ask that person to hold back. रुक जाओ थोड़ा देर. Keep up. Keep up is very good. Like for example, somebody does a very good job, and we say keep up the good work. Keep up जो तुमने अच्छा काम किया है उसी को जारी रखो, उसी अच्छे काम को जारी रखो. Keep up the good work that you're doing. So that is one's energy or progress. Keep up the good work that you're doing. And then the next one is keep on. अगर मान लीजिए कि आप किसी से कोई काम है आपको और आपको आपके बॉस ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप उससे जाइए और उसको बार बार तगादा कीजिए. आस्क हिम टू पे द ड्यूज. जो उधार पैसा है वो वापस हम लोगों को करे. आप एक दो बार गए, उसने आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया. So your boss will tell you, keep on going to him and asking for the money. Keep on यानी बार बार तुम उसको जारी रखना बोल सकते. जारी कैरी जारी रखना मतलब बार बार जाना. हाँ जारी रख. ठीक बिल्कुल. कीप ऑन और मतलब कि कीप इट अप. बार बार हमेशा उसको मतलब रुकना नहीं. So that means keep on or continue to do what you're doing. और keep up मतलब जैसा कर रहे थे उसी काम को, उसको बेहतर नहीं करना है, उसको खराब नहीं करना है. Keep up the good work that you're doing. Then you have keep back. Keep back इसका मतलब होता है कोई चीज को कंसील करना या सीक्रेट, उसको सार्वजनिक नहीं करना. That means keep back your plans for expansion. अभी पैंडेमिक है, अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, so keep back. अभी मत रिवील करो लोगों को. एक्सपैंड करने वाले हैं लोग या विस्तार करने वाले हैं अपनी इंडस्ट्री का या ट्रेड का. तो keep back. So put it down. Lay down an office. Usually this means when someone resigns. Yes. High place पे. You can also say put down his papers. उसने resign कर दिया, but he lay down. ये literal sense में जैसे हम लोग कर रहे हैं idiomatic verbs. Idiomatic verbs are never taken in the literal sense. हम लोगों ने introduction में ही देखा था. Just like most idioms, literal sense में नहीं लिया जाता, उनको metaphorical या figurative way में लिया जाता है. So similarly, lay down means he lay down office. And उसने छोड़ दिया, he resigned. It's usually said for very high posts like the Prime Minister or the Defense Minister. इस तरह के लोग हैं. He lay down his office. Let out. Let out मतलब होता है liberate, किसी चीज को freedom देना. You can even let out your feelings. बहुत से आपके मन में कोई किसी चीज का गुबार है and it's building up slowly. It develops into a frustration. Then one fine बाहर day, निकालना सर वो. हाँ? बाहर क्या? निकालना.
बाहर हाँ, निकालने उस गुबार को आपने बाहर निकाल दिया, सबके सामने वेंट आउट किया। यस दैट वाज, जो आपने उन विचारों को लिबरेट कर दिया है, उनको लोगों आजाद के सामने। कर दिया सबके सामने। तो यहाँ पे लेट आउट अ प्रिजनर है, यहाँ पे भी हो सकता है लिबरेट, मतलब किसी को फ्रीडम दे देना। जेल में कोई कैदी बंद था, उसकी सजा पूरी हो गई या उसका बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, तो आपने उसको छोड़ दिया, यू लिबरेटेड, यू लेट हिम आउट। और एक और लेट आउट होता है जब कोई गुप्त कोई बात होती है, कोई सीक्रेट होता है, you let it out, आपने उसको किसी को बता दिया, तो he let out the secret, he let out the secret। और divulge secret के बारे में अक्सर यूज होता है, divulge, that means किसी गुप्त चीज को जो अभी तक एकदम सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था, आपने किसी कारण से उसको सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक। look after, this is rather easy, look after, take care of, किसी का देखभाल करना, that is look after। and look forward to, मतलब जो आने वाला जो है कोई चीज, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उस चीज का। like for example, let's suppose that it's your birthday and it's 10 days away, so you're looking forward to your upcoming birthday, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और with pleasure, क्योंकि बेसब्री से, और आपको वो खुशी का मौका। look into, yes, look into, investigate करना कोई चीज को, उसकी तफ्तीश करना। so I have a problem, I have a, can you look into the problem, or can you look into the affairs of the students? look into मतलब उसमें झांकना, उसको देखना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा, what is the problem, ये find out करना। please look into the problem। look in और look into or investigate, तफ्तीश करना, है ना। look for, very simple, search, किसी चीज का ढूंढना। I'm looking for my driver's license, मैं ढूंढ रहा हूँ। have you seen it, घर में मैं किसी से पूछ सकता हूँ। so look for, then it is make out, I can make out what you're trying to say, मतलब आपने, किसी ने आपको डायरेक्ट वे में नहीं बोला है, आपको हिंट्स दिया है, और उस हिंट पे I can make out what he was trying to say। कोई डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं कह रहा, क्योंकि वो चीज आपको अनप्लेजेंट लगेगा। तो उसने क्या किया आपको, कि ऐसा कर दिया, आप उसको कह रहे हो कि नो, I could make out, I think I know what you're trying to say, I can make out what you're trying to say, मुझे समझ में आ रहा है। make up one's mind, ये तो आसान है, make up one's mind, that means आप निर्णय लीजिए, आप अपना मतलब दिमाग पे ये डाल करके कि हाँ क्या किया जाए, असमंजस की स्थिति है। so make up your mind as to what you want to do। so make up one's mind, resolve upon, pick out, यानी किसी चीज में बहुत उसको चयन करना। like for example, कोई cultural program है, lots of people are performing, but only a few can feature, so I will pick out the best performers, I will select the best performers।
put out, ये भी होता है put out the fire, और किसी चीज को extinguish करना, put off जो होता है वो अलग हो सकता है। He put me off, मतलब मेरा मूड अच्छा था, उसने कुछ ऐसा बोला कि मेरा मूड ऑफ हो गया, तो he put me off, he put off, उसको ऐसे कहते हैं। But put out basically it means putting out, यानी कोई चीज को extinguish करना, चाहे वो एक कैंडल हो या एक लैंटर्न हो या कोई भी चीज हो। Even put out the lights, electrical lights भी जो होता है, अमेरिका में मैक्सिमम लोग they won't say switch out the lights or switch off the lights, they'll say put out the lights, बत्तियों को बुझा दो, they're all going to sleep, so put out the lights. अब ये है एक put forth, forth मैंने आप लोग को बताया था आगे बढ़ने को forth कहते हैं, march forth, तो यहाँ पे put forth leaves and shoots of a plant, run down, यानी कोई घर बहुत ill maintained है, अच्छे से मेंटेन नहीं है, उस पे पेंट अच्छा नहीं है, टूटा हुआ है, या बहुत से प्लास्टर झड़ा हुआ है उसका, you can say it was a run down house. Run down मतलब just depreciated, or it can also mean to a person, but mainly it's done to a building or a facility. It was run down. Run after, ये बहुत कॉमन है, धन के पीछे भागना है, was running after, mainly अब कोई पढ़ाई अच्छा करता है तो उसको आप ये नहीं बोलेगा कि he runs after Yes. what you call studies, but yes, if he is, that person is running after wealth or mainly wealth को ही आप कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव इसमें concoction has a negative attribute to it, running after. Run out of मतलब कोई चीज खत्म हो जाती है, the hospital ran out of oxygen, or I was on the national highway when I ran out of fuel. गाड़ी में पेट्रोल खत्म. Yes. Set forth, start upon a journey. Forth मतलब मैंने बोला था आगे आना, हमेशा ये होता है. Set forth मतलब आगे बढ़ा है, कोई जर्नी का या कोई यात्रा का शुरुआत करना, उसको कहते हैं कि set forth, यानी आगे की तरफ उसने बढ़ा. Set ad, this is something very unique. Set ad means reject, किसी चीज का कोई प्रपोजल को उसको ये कर देना, बंद कर देना, उसको मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, set ad. and ये तो है claim set down a claim. किसी LIC में क्लेम आया कि हाँ भाई ये इतने पैसे इसके बनते हैं, लेकिन तफ्तीश के बाद उसने कहा कि I set down, I reject this claim. That can be a set down. Set in मतलब begin. Winter has set in. Even अगर आप सीमेंट का कोई काम करते हैं ईंटे उटे को जोड़ने के लिए, तो आप कह सकते हैं the cement has set in, मतलब वो जम गया है, अपना प्लेस ले लिया है, it's doing its work. तो set in usually होता है begin करना कोई चीज का, जैसे winter has set in. Set off or out. Set off मतलब किसी यात्रा पे depart. Christopher Columbus set off on a voyage looking for India. Set off मतलब उसने शुरुआत, इंडिया ढूंढ रहे थे लेकिन पहुंच गया अमेरिका, और अमेरिका को ही इंडिया समझ बैठे.
वहाँ के जो नेटिव लोग थे, जो उनका नाम रेड इंडियंस लिख दिया, बता दिया। एक पूरा राज्य है अमेरिका में, उसका नाम है इंडियानापोलिस। तो बहुत सा कंफ्यूजन हुआ था, वो समझे थे कि हम इंडिया पहुंच गए। नहीं, राज्य जो है, सॉरी, राज्य जो है इंडियानापोलिस नहीं है, राज्य जो है वो इंडियाना है, और उसमें एक सबसे बड़ा शहर जो है वो है इंडियानापोलिस। ये सब, he set off on a trip to look for India, but he landed up in America. So stand out, to be prominent. His performance stood out of the class. सबसे अलग, और ये पॉजिटिव सेंस के लिए बोला है। स्टैंड आउट मतलब अच्छे चीज का। नेगेटिव, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि he was an outstanding student. आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट। लेकिन उसको दूसरे में लोग बोलते हैं कि नहीं, टीचर हमेशा उसको क्लास के बाहर निकाल देता था, वो अलग दिखना इसलिए वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो गया। नहीं, दिस इज अ, ये एक मजाक के रूप में लोग कहते हैं आई वाज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग, ओके, हाउ मच डिड यू स्कोर? 35%. How come you were outstanding? I was outstanding because the teacher used to send me out of the class every time. Every teacher used to send me out. This is a hilarious point for us, हंसी मजाक में, but stand out actually means to be very prominent. Prominent और बहुत उत्कृष्ट काम करने में आप मतलब stand out करते हैं। और stand out against यानी किसी काम या किसी चीज को resist करना, नहीं ये गलत है, मैं इसको नहीं करूंगा। अगेंस्ट, That is stand out against, किसी चीज का एक विरोध करना, विरोध करना है। हाँ, वही देखिए, आउट की जगह जब बाय लग गया तो कंप्लीट मीनिंग चेंज हो गया। He stood by me in my hour of crisis, यानी जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो he stood by me, यानी he supported me, he helped me. Supported person. That is stand by. एक होता है stand up, stand up for, यानी कोई आप स्टैंड ले रहे हैं। ये नहीं कि ढुलमुल नीति है, ना मैं इधर का हूं ना मैं उधर का हूं, जिधर की हवा है उधर का मैं हूं। एडवोकेट को बोलते हैं कोर्ट में। हाँ, तो यहाँ पे होता है स्टैंड अप फॉर, मतलब आप किसी चीज का पक्ष ले रहे हैं, खड़े होकर के कह रहे हैं कि नो, आई स्टैंड फॉर दिस, ये सही है, मेरे विचार में ये सही है या ये गलत है। सपोर्ट करना होगा सर। नहीं, वो स्टैंड बाय हुआ, पक्ष में सर। यस सर, पक्ष। स्टैंड बाय, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टैंड अप फॉर, तो चाहे वो विमेन लिबरेशन की बात हो, ठीक है, तो फेमिनिज्म की बात हो, तो somebody stood up for that cause, यानी मैं विमेन्स लिबरेशन के पक्ष में हूँ, उनके साथ सदियों से अन्याय होता आ रहा है, they were not allowed to be educated, they were not given the freedom, so I stand by women's empowerment, women's education, I stand up for, या I stand up by, मतलब मैं खड़ा हो रहा हूँ। Take in, take in का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना, डिसीव करना, चीट करना। So so he explained this scheme to me and I was taken in. मतलब उसने मेरे को बेवकूफ बना लिया था कि हाँ, इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 1.5 साल या 2 साल में डबल हो जाएगा, और इस तरीके से होगा। तो I was taken in. That is the meaning of taken in, deceive, word number 74, ठीक है, to take in someone, you need to deceive a person, cheat, है, हाँ, cheat, deceive, yes sir। So take on, अब ये था take in, है ना, then take off, take off, तो कोई भी चीज को आप निकाल, आप अपने, I take off, he took off his shirt,
like Salman Khan does in all his movies. So, or he took off his hat. It was very warm, so he took off his coat. So take off means it can also be used for an aircraft. The plane Yes. के लिए, Yes. the aircraft took off. Take off. Took off मतलब वो दौड़ते हुए आया, full momentum gain किया, and then it went into the air. So that can also be. यहाँ पे remove का बात नहीं है, हवा में airborne होना. That is a Take take off. Take off. Then you have take on. Take on usually होता है ना, कोई challenge आपको दिया जाता है, और you take on that challenge. He took on the task. He took on, यहाँ पे task का है, या he took up. ये नहीं sorry, जब challenge होता है तो took up होता है. Take up the challenge, यानी कोई challenge को आप accept कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं. तो यहाँ पे take on is agree to do a task. He took on the task. किसी काम को अपने हाथ लेना, आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, take up. This is some work that you're referring to. कोई भी काम, he took up the project and worked. कोई very प्रोजेक्ट hard को at it. स्टार्ट करना सर. टेक अप. हाँ, टेक अप स्टार्ट करना भी कह सकते हो, कमेंट्स है यहाँ पे, या मतलब Yes, हाँ, sir. उसको आप कमेंट्स का challenge के मतलब तो रूप सर में आप लेते हो. स्टार्टिंग बिजनेस में होता है बिल्कुल शायद. बिल्कुल बिल्कुल हाँ. So you take over, can you gain over? Then you have the other sense, take up, also accept an offer. किस संदर्भ में यूज किया गया है? किसी ऑफर को आपको एक्सेप्ट करने में. कोई चैलेंज, हाँ, कोई चैलेंज, कोई काम आपको दिया गया, so he took up the offer. Take दो over. मीनिंग है सर टेक ऑफ का. ये टेक अप. हाँ हाँ बिल्कुल. और टेक ओवर ये जो चीज है, ये बिजनेस लाइन में, आप लोग के लाइन में बहुत यूज होता है. लाइक सन फार्मा took over Ranbaxy. Ranbaxy पहले एक कम है, लेकिन टेक ओवर यूजुअली हॉस्टाइल होते हैं, ये भी होता है. उसमें जो शेयर्स हैं, उसके शेयर्स को खरीद लगता है, और ये आपको पता है 51% शेयर्स जिसके पास कंट्रोल उस कंपनी पे उस व्यक्ति का होता है. Yes, sir. यूजुअली आप किसी कंपनी का कंट्रोल खोना नहीं चाहते हैं. आपकी पारिवारिक कंपनी है, तो आप अपने पिताजी को 10% का ओनर, अपने वाइफ को 20% ओनर, खुद 30% ओनर, तो ऐसे मिलाकर के कुल 51% मेजॉरिटी स्टेक जो है वो रखते हैं. लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ, पिताजी आपसे नाराज हो गए और उन्होंने अपना 10% स्टेक मार्केट में बेच दिया, बेच दिया. दूसरा कोई आपके कंपनी पे टेक ओवर कर सकता है. टेक ओवर कर सकता है यानी आपकी कंपनी को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में ले लेगा. वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपना प्रेसिडेंट, अपने चार्ज में अपना ले. चेयरमैन अपॉइंट करेगा. बिल्कुल. सो टेक ओवर बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर ये. और टेक ओवर दूसरे सेंस में भी होता है, ये बिजनेस सम का टेक ओवर हुआ, और टेक ओवर मतलब कि भाई एक बंदे ने काम छोड़ा और दूसरे बंदे ने उसको उसके पोस्ट पे ज्वाइन किया. सो ही टुक ओवर द चार्ज, or he took over the duty of the principal secretary. That can also take away, यानी किसी से कोई चीज ले लेना. Because of the tough economic conditions, Google took away many privileges or many perks to its employees. यानी पहले था कि हाँ भाई रेंट फ्री है, खाना फ्री है गूगल की कैंटीन में, वो उसने टुक अवे यानी उसको विड्रॉ कर लिया. अब आपको खाना है तो आपको पैसा अपना देना होगा. टुक अवे. Yes, sir. Now the time is up, sir. Okay, there are just few words. Okay, sir. Okay, sir. Take after. Who else do you have after this? Nitish sir. Yes, sir. Yes, Nitish, sir. Right? It's at 9 o'clock or 9:15? 9:05. 9:05, sir.
So take away means किसी से कोई चीज ले लेना. Take after. Usually मतलब किसी को दे के अगर सर ले कोई लेना फादर और सन, हाँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि पहले से बहुत से पर्क्स कोई कंपनी ने रखा था, गूगल ने दे खाना पीना फ्री, ट्रांसपोर्टेशन टू ऑफिस फ्री, इस तरह के जो पर्क्स क्या है जॉब, वो तनख्वाह में अलग था और तनख्वाह से अलग ये चीज होती है, सैलरी से अलग. लेकिन कई बार इकोनॉमिक हार्डशिप से ऐसे होते हैं तो उन लोग कुछ पुराने फैसिलिटीज को विथड्रॉ कर लेते हैं, टेक इट ब्लेमिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन. और टेक आफ्टर मतलब कोई एक फादर, द सन टेक्स आफ्टर द फादर, इट रिजेंबल, यानी लुक्स में भी, शक्ल सूरत में भी और ऐसे में. सो टेक आफ्टर. take down the notes, है ना, और Write down. that is take down the notes or write down, throw दोनों out. एक ही बात. कौन सा? Take down, write down. सर take टेक down मतलब and तो होगा सर, मतलब लेना, राइट मतलब तो सर लिखना होगा ना. वही ना. write. तो अब तो हम लोग कहते हैं कि नहीं तुमको कि please take down the notes. Yes, I'm going to dictate, please take down. Write down भी होता है, I agree, but Yes, sir. take down भी बहुत बार सुना होगा. मैंने कम से कम सुना है कि take down Yes, the sir. notes. Throw out यानी किसी को reject फेंक करना. देना, फिर उसे रिजेक्ट कर देना. Throw out the bill. एक Throw out देना. the bill मतलब कि किसी चीज को रिजेक्ट करना. लिटरली ये नहीं कि हाँ अगर कोई आपके घर में आ गया और या आपके ऑफिस में आ गया जो कि आप उसको वेलकम नहीं करते हो, तो ये नहीं कि हाँ थ्रो हिम आउट, आपने अपने सिक्योरिटी को बोला. No, इसका sir. मतलब नहीं कि उठा करके और खिड़की से बाहर फेंक दो. It doesn't literally mean that, but throw out means get him out of the campus. प्रस्ताव को ठुकरा देना. हाँ, अब यहाँ पे वो किसी काम के लिए भी हो सकता है. Reject बिल, करना. एक बिल, एक लॉ, बिजनेस So- डील में हो सकता है ना सर. बिजनेस डील को. बिजनेस डील भी हो सकता है, ठीक है. और या फिर जो लॉ होता है विधानसभा विधान Yes. परिषद में लॉ सर. कि the bill was rejected, so they threw out the bill. आप कह सकते House हो में. उसको. Turn up, you know, something. Turn up मतलब अचानक कोई प्रकट होता है. So and so turned up. कोई नया All of a मोड़ आ sudden. जाना. हाँ, या इवन कोई बंदा, वो बंदा कुछ 6 महीने से गायब है. 6 महीने से वो अचानक. क्लास उस नहीं अटेंड कर रहा है, ठीक है. अचानक जो है एक दिन वो प्रकट होता है क्लास में. So he turns sir. up. तो टर्न अप हैपन को भी कहते हैं और किसी के फिजिकल प्रेजेंस को भी कहते हैं जो अचानक. कोई सडन मोमेंट सर. Yes, अचानक से all of जाग a उठते. sudden. Work put, you know, work put means solve a particular problem. कोई भी काम को आपने अगर रिजॉल्व किया या सॉल्व किया तो दैट इज पुट एज वर्क. ठीक है. Yes, So sir. I Yes, think sir. it is exactly Yes, sir. 9:06. I'm late by 1 minute, so I'm letting you all go. Yes, sir. No. It's okay, sir. But कोई the नहीं. idioms And and we'll see phrases that are in the complete later today. session. Okay. Thank you, everybody. Thank you, sir. sir. Have a Thank great you. day, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. All of you, you too.